آج گڑیا اور کوکو کی نانو گڑیا اور کوکو کے لیے بکری لے کر آئی تھی۔ نانو نانو، ہماری بکری بہت سندر ہے، ہم اپنی بکری کا بہت خیال رکھیں گے۔ نانو، میں اپنی بکری کے لیے تازہ گھاس لاؤں گا اور اپنی بکری کو میٹھے پھل کھلایا کروں گا۔ گڑیا اور کوکو، سن لو، اگر بکری رکھنی ہے تو اس کو چارہ خود ہی ڈالنا، مجھ سے چارہ وارہ نہیں ڈال ہوگا۔ بیٹی دیکھو، میرے نواسے کتنے کمزور ہو گئے ہیں، بکری کا تازہ دودھ پئیں گے تو میرے بچے موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر گڑیا اور کوکو اپنی بکری کے لیے گھاس لینے چلے جاتے ہیں۔ گڑیا اور کوکو، کیا تم گھاس بھی کھاتے ہو؟ میں نے تو سنا تھا ہم پکشی صرف دانا ہی کھاتے ہیں۔ نہیں جگو، ہم یہ گھاس ہماری بکری کے لیے کاٹ رہے ہیں، میری نانو ہمارے لیے بکری لائی ہے۔ بکری؟ مجھے بھی دیکھنی ہے بکری۔ گڑیا رکو، میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری بکری دیکھنے جاؤں گا، میں بھی تمہاری بکری کو گھاس کھلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم بھی اپنے حصے کی گھاس کاٹ لو، تم بھی ہماری بکری کو گھاس کھلا دے۔ جگو بھی کوکو اور گڑیا کے ساتھ گھاس کاٹنے لگتا ہے۔ کھاؤ کھاؤ سندر بکری، گھاس کھاؤ گھاس کھاؤ، میں تمہارے لیے تازہ گھاس لایا ہوں۔ اب میری باری ہے، بکری میری گھاس کھائے گی، اب میری باری ہے۔ تینوں دوست بکری کو گھاس کھلا رہے تھے۔ بکری پیٹ بھر کر گھاس کھاتی ہے۔ پھر کوکو اور گڑیا کی مما بالٹی میں بکری کا دودھ نکالتی ہے اور تینوں دوستوں کو ایک ایک گلاس دودھ کا دیتی ہے۔ جگو دودھ کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہتا ہے، سچ میں یہ دودھ بہت میٹھا ہے، جو دودھ میری مما لاتی ہے وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا، وہ تو پتلا پانی جیسا ہوتا ہے۔ گھر جا کر جگو رونے لگ جاتا ہے اور اپنی مما سے کہتا ہے، میں بھی لوں گا، میں بھی بکری لوں گا، مما مما دیکھیں، کوکو اور گڑیا کے پاس بکری ہے، مجھے بھی بکری لینی ہے، میں بکری کا میٹھا دودھ پیوں گا۔ سن لیا کالو، کھڑی کر دی نا چڑیا نے نئی مصیبت، اب بکری لے آئی ہے، ہم جگو کو بکری کہاں سے لے کر دیں؟ یہ چڑیا ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کام کرتی ہے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیتی ہے۔ پاپا پاپا، گڑیا اور کوکو کو بکری ان کی مما نے نہیں لے کر دی، بلکہ ان کی نانو لائی ہے۔ مما، آپ میری نانو سے بھی کہیں مجھے بھی بکری لا کر دے۔ کالو ہنسنے لگتا ہے۔ گوری، کرو فون اپنی ماں کو کہ اپنے نواسے کے لیے بکری لے کر آئے، اس کا نواسا بکری مانگ رہا ہے۔ چپ کر جاؤ کالو، مذاق مت اڑاؤ، میری ماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو جگو کو بکری لے کر دے؟ اب تو تمہیں ہی کوئی جگاڑ لگانا ہوگا۔ دوسرے دن کوکو اور گڑیا اپنی بکری کو گھاس کھلانے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بکری گھاس کھا رہی تھی، پھولوں پر تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کوکو اور گڑیا تتلیوں کے پیچھے اڑتے اڑتے تھوڑی دور چلے جاتے ہیں۔ بکری اکیلی ہے، گڑیا اور کوکو کی بکری اکیلی ہے، میں یہ بکری چوری کر کے لے جاتا ہوں، میرا جگو بیٹا خوش ہو جائے گا۔ کالو کوا بکری کی رسی پکڑتا ہے اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ جگو جگو بیٹا دیکھو، میں تمہارے لیے بکری لے آیا ہوں۔ پاپا پاپا، یہ تو وہی بکری ہے جو کوکو اور گڑیا کے پاس تھی۔ کالو جی، تم گڑیا اور کوکو کی بکری تو چرا لائے، لیکن وہ بکری کو پہچان لیں گے اور واپس لے جائیں گے۔ چنتا نہ کرو گوری، میرے پاس اس کا اپائے بھی ہے۔ کالو کفا بازار جاتا ہے اور دکان سے رنگ کی بوتل لے آتا ہے۔ گھر جا کر کالو کفا گڑیا اور کوکو کی بکری پر رنگ کر دیتا ہے۔ جگو خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ بکری کا رنگ سفید ہو گیا، بکری کا رنگ سفید ہو گیا، اب کوکو اور گڑیا اپنی بکری کو نہیں پہچان پائیں گے۔ کوکو بھائی، ہماری بکری کہاں گئی؟ بکری یہاں نہیں ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا گڑیا بہن، مما نے کہا تھا کہ بکری کو اکیلے مت چھوڑنا، ہماری بکری کو شیر کھا گیا، ہماری بکری کو شیر کھا گیا۔ کوکو اور گڑیا رونے لگتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی روتے ہوئے
घर वापस आ जाते हैं और अपनी मम्मा और नानो को बताते हैं। नानो नानो, मम्मा, हमारी बकरी को शेर खा गया। क्या? क्या आपने शेर को देखा था? आप कहाँ थे जब शेर आया? नहीं मम्मा, हम तो फूलों के पास थे, हम तितलियों से खेल रहे थे। जब हम वापस आए तो हमारी बकरी नहीं थी। रानो बेटी, जल्दी से मेरे साथ चलो, हम उस जगह जाकर देखते हैं। शेर ने बकरी का मांस खाया होगा, हड्डियां नहीं। गुड़िया की नानो और गुड़िया की मम्मा जल्दी से उस जगह पर जाती हैं जहाँ कुकू और गुड़िया ने बकरी को छोड़ा था। रानो बेटी, यहाँ ना तो खून का धब्बा है और ना ही हड्डियां, इसलिए हमारी बकरी को किसी शेर ने नहीं खाया, बल्कि किसी चोर ने चुराया है। रानो चिड़िया सबके घरों में पूछती है। तोते भैया, क्या आपने मेरी बकरी को कहीं देखा है? नहीं रानो चिड़िया, मैंने तो तुम्हारी बकरी नहीं देखी। कबूतर भैया, क्या आपने मेरी बकरी को कहीं देखा है? नहीं रानो चिड़िया, मैंने तो तुम्हारी बकरी कहीं नहीं देखी। पूछते पूछते रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। कौवों के घर से बकरी की मैं की आवाज आ रही थी। बकरी की आवाज आ रही है, मेरी बकरी जरूर कालू कौवे के घर में ही होगी। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौवे भैया, आप मेरी बकरी को अपने घर क्यों लाए हो? आपने मेरी बकरी को क्यों पकड़ा? नहीं नहीं रानो चिड़िया, ये बकरी तो जग्गू की नानो आज सुबह लाई थी। आओ आओ, अंदर आकर खुद अपनी आंखों से देख लो। रानो चिड़िया दरवाजे से झांक कर देखती है। हाँ कालू भैया, आपने ठीक कहा, हमारी बकरी तो भूरे रंग की थी और ये तो सफ़ेद है, ये हमारी बकरी नहीं है। रानो चिड़िया को मालूम ही नहीं होता कि कालू कौवे ने बकरी पर रंग किया हुआ है। रानो चिड़िया वापस चली जाती है। सब अपने घर में परेशान बैठे थे। गुड़िया और कुकू तो रोए जा रहे थे। गुड़िया की नानो और मम्मा भी परेशान थीं। रानो बेटी, क्या तुमने कौवों के घर में जाकर खुद बकरी को देखा था? हाँ माँ, मैंने गौर से देखा था। वो बकरी तो हमारी नहीं है, वो तो सफ़ेद रंग की बकरी थी। गुड़िया और कुकू अपनी नानों के साथ जंगल में अपनी बकरी ढूंढने जाते हैं। जग्गू कौवा सफ़ेद बकरी को साथ लेकर जंगल में घूम रहा था। नानो नानो, वो देखें, जग्गू के पास बकरी है, लेकिन वो तो सफ़ेद बकरी है, वो बकरी हमारी नहीं है। गुड़िया बेटी, बकरी का रंग चाहे सफ़ेद है, लेकिन मुझे ये बकरी देखी लग रही है। ज़रूर दाल में कुछ काला है। दूध निकाल रही थी। गुड़िया की नानो जोर से दरवाज़ा खोलती है और पानी की बाल्टी लाकर बकरी के ऊपर गिरा देती है। पानी गिरते ही बकरी का सफ़ेद रंग उतर जाता है और अंदर से गुड़िया और कुकू की बकरी निकलती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कुकू, देखो देखो, ये हमारी बकरी है। मैंने पहले ही आपको बताया था, मुझे इन कौवों पर शक थी। ये कैसे हो सकता है? हमारी बकरी का रंग इतना कच्चा कैसे हो सकता है? आंटी, झूठ मत बोले, ये बकरी हमारी है। आपने हमारी बकरी पकड़कर उस पर सफ़ेद रंग कर लिया, लेकिन मेरी नानो भी बहुत सियानी है, आप हमारी नानो से नहीं बच सकती। गुड़िया बेटी, आप बकरी लेकर घर जाओ और मैं इन कौवों को सीधा करती हूँ। घर के कोने में झाड़ू पड़ा था। गुड़िया की नानो झाड़ू उठा लेती है और गोरी कौवी और कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। प्यारे दोस्तों, झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है और बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करें और झूठ मत बोलें। आपका धन्यवाद।
रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दुष्ट कालू कौवा कबूतर चाचा के दरवाजे पर जोर से डंडे मारता है। जल्दी खोल दरवाजा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आगे भी जाना है। कबूतर चाचा डरता हुआ दरवाजा खोलता है और एक प्याला अनाज का कौवे की झोली में डाल देता है। साहिब, एक बार ही तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी थी, ज्यादा बातें ना करो। जब मेरे आने का टाइम हो दाना लेकर बाहर दरवाजे पर आ जाया करो, सुना है ना? हाँ, वरना जान से जाओगे। वो कौवा दाना लेकर चला जाता है। वो कौवा हमेशा दूसरे पक्षियों को डरा धमकाकर उनका दाना लिया करता था। वो किसी गरीब पक्षी और किसी बीमार पक्षी को भी ना छोड़ता। ले माँ जी, मैं आपके लिए गेहूं का दलिया बना कर लाई हूँ। आपको बुखार था ना, आप ये दलिया खा लें। रानो चिड़िया तिनकों के घोंसले में बैठी हुई बूढ़ी चिड़िया माँ के लिए दलिया लेकर आती है। शुक्रिया बेटी, एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा वहाँ से गुजरता है। वो बूढ़ी चिड़िया को दलिया खाती हुई देखकर वहाँ आ जाता है। अरे बूढ़ी चिड़िया, चल हट, चोंच ना लगाना इस दलिये को, ये मैं खाऊंगा। बेटा, मैं बीमार हूँ। रानो चिड़िया मेरे लिए ये दलिया बना कर लाई थी। बूढ़ी ही हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक 2 लगाई होती मैंने। कौवा बूढ़ी चिड़िया का दलिया खाता है और वहाँ से चला जाता है। गरीब तोता अपने घोंसले के पास बैठा अमरूद खाने ही वाला था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है और आते ही तोते के 2-4 लगाता है। मैंने क्या किया है? कितनी बार कहा है, जब भी कोई फल मिले तो मुझे दिया करो। तुझे ये फल खाने का अधिकार किसने दिया है? मैं तो ये मेहनत से फल कमा कर लाया था। तेरी मेहनत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है, चल भाग यहाँ से। कौवा तोते का अमरूद उठाकर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ तोता रानो चिड़िया के पास जाता है। छीन लिया, आज फिर उस काले कौवे ने मेरा फल छीन लिया है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। इतने बड़े जंगल में कोई ऐसा नहीं जो उस कौवे को रोके। तोते भैया वो ताकतवर है और जिसे दिल करता है मारता है। कौन उसका सामना कर सकता है? तो फिर मैं ऐसे जंगल में नहीं रहूंगा। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मैं भी जा रहा हूँ। चिड़िया, ये जंगल छोड़कर मैं भी जा रहा हूँ। हम इस जंगल में नहीं रहेंगे जहाँ ऐसे काले कौवे रहते हैं। चिड़िया रोकती रह जाती है, लेकिन तोता और कबूतर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। दूसरे ही दिन कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और चिड़िया को मारने लगता है। उस तोते और कबूतर को तुमने दूसरे जंगल भेजा है, अब मेरे लिए भोजन तुझे ही लाना होगा। तुम अकेली को ही मेरे सारे काम करने होंगे। कौवे क्या करो, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं है। चिड़िया भी कौवे के जुल्म से तंग आ जाती है और रात होते ही रानो चिड़िया भी अपना सामान उठाती है और तोते और कबूतर के पीछे दूसरे जंगल चली जाती। आखिर जुल्म कब तक चलता है? एक न एक दिन हर जुल्म का हिसाब देना ही होता है। एक रात तेज बारिश और हवा चलती है और कौवे के घर की छत टूटकर कौवे के ऊपर गिर जाती है। कौवा बहुत मुश्किल से खुद को लकड़ी के नीचे से बाहर निकालता है। कौवे का एक पंख टूट जाता है, वो गिर जाता है और पेड़ के तने के साथ लगकर बैठ जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश थम चुकी थी। बुलबुल जब कौवे के पास से गुजरती है तो कौवा बुलबुल को मदद के लिए पुकारता है। बुलबुल बुलबुल, मेरी मदद करो। बुलबुल वहाँ आती है। बुलबुल, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। मुझे किसी तरह उठाकर तिनकों के घोंसले में बिठा दो। कौवे, याद है ना वो दिन जब तुमने मार मार कर मेरे छोटे से बच्चे की जान ली थी? मैं तब से सोच रही थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम इसी हालत में दूसरों से मदद की भीख मांग रहे होगे। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तोते और कबूतर आप वापस आ जाएं। कौवे का जुल्म खत्म हुआ और वो अपने टूटे हुए पंख के साथ पेड़ के नीचे बैठा मदद की गुहार लगा रहा है। कबूतर भैया, मेरा भी इस जंगल में दिल नहीं लग रहा, क्यों ना हम अपने जंगल वापस चले जाएं। हाँ, अब वो कौवा कुछ नहीं कर सकता, हमें उस कौवे से कोई डर नहीं है। फिर वो सब अपने जंगल वापस चले जाते हैं और खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगते हैं।
मुझे एक दाना दे दो, कोई मुझे एक दाना दे दो, मैं भूख से मर रहा हूँ। चिड़िया जब अपना दाना लेकर वहाँ से गुजरती है तो उसे कौवे पर दया आ जाती है और वो कौवे के पास आती है। कौवे, याद करो वो दिन जब तुम ताकतवर थे और तुम्हारे जुल्म की वजह से हम सब ये जंगल छोड़कर चले गए थे, और इस वक्त अगर हम सब चाहें तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे सकते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। जो जुल्म मैंने तुम सब पर किए उसकी सजा तो मैं भुगत रहा हूँ और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। लो कौवे, एक दाना खा लो, और हाँ, अब तुम्हारे पछताने से समय लौट कर नहीं आने वाला। तुम शर्मिंदा हो सिर्फ इसलिए कि अब तुम्हारे पंखों में वो ताकत नहीं रही। ऐसे कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा सारा दिन वहाँ अकेला बैठा रहता है और कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं था। ऐसे कौवे को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिलती है।